नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। कन्नड़ संस्कृति और ऊर्जा विभाग मंत्री सुनील कुमार आज बीदर दौरे पर। बीदर चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की पुनर्निर्मित इमारत उद्घाटित। एनएसयूआई की राज्य अध्यक्ष कीर्ति गणेश को रिहा करने की मांग। कर्नाटक पाठ्यपुस्तक संशोधन समिति भंग, ग्रंथों को फिर से संशोधित करने के लिए खुला सीएम बोम्मई। श्रीरंगपटना पुलिस ने मार्च से पहले मस्जिद रोड को जाम कर दिया। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले अमित शाह, गृह मंत्री से मिलकर रो पड़े पिता। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कन्नड़ संस्कृति और ऊर्जा विभाग मंत्री सुनील कुमार आज बीदर दौरे पर पहुंचे। कुमार का बीदर तेलंगाना की सीमा पर भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद वह अपने काफले के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानंद मठालकर, डॉक्टर शैलेंद्र बेलदारे, बाबू वली, पूर्व विधायक प्रकाश खंडरे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇದನ್ನ ಮೂರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರೇಜಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಭಾರತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊನ್ನೆ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 75 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಗಾಯನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 75 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೋರಾಟದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. बीदर जिला अदालत परिसर में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की पुनर्निर्मित इमारत का उद्घाटन कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने किया। इस अवसर पर न्यायाधीश संजय गौड़ा, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एनके पाटिल, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल टीजी शिवशंकर गौड़ा, बीदर जिला न्यायाधीश बसवराज शेरगा रेड्डी, बार एसोसिएशन बीदर डिस्ट्रिक्ट अशोक मनूरे, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशक रविंद्र रत्नाकर सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। Stakeholders, the advocates, the judges and the litigants also understand the sensitivity in which the child will be treated for getting the truth and for ensuring justice to another child. I would most humbly request the members of the bar
to be extremely conscious and acutely aware of the trauma that the child would have undergone, and it would therefore be necessary as members of society to treat a child who is affected by an event to be not traumatized and make sure that justice is done to them. I hope and trust that the members of the bar and other stakeholders will take this crucial view of the matter and take appropriate action towards ensuring dispensation of justice. As an administrative judge, my responsibility is to ensure that the infrastructural needs of the entire district are met. For this, until and unless I am told about the deficiencies and the requirements, I cannot really act. As an administrative judge, our visits are short and filled with ceremonial functions like this. In order to understand the real need, I would request the members of the bar as well as my brother judges to enlighten me about the deficiencies in the system so that some effective steps can be taken to address them. And you are supposed to create a suitable environment. If the environment is not good, it is very difficult to decide the matters. And you must know inculcate yourself to in a better position to communicate. Skill is required. Communicating a smart child is very toughest job. It is only mother knows how to communicate. But mother, father knows very limited. Who was participating in the proceedings, appearing for the petitioner, respondent, or plaintiff, or defendant, you must have expertise in that. I feel it's a high time with respect to bar association to give a memorandum to the chief justice and court to arrange the training for the advocates, whether the lady advocate or James, it requires training. Not training is very difficult to handle such cases. It's very sensitive in India, very complicated. NSUI बीदर शाखा द्वारा आज प्रदर्शन कर जिलाधिकारी माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपकर मांग की है कि NSUI राज्य अध्यक्ष कीर्ति गणेश और उनके साथियों को तुरंत रिहा किया जाए। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे NSUI के राज्य अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। NSUI ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಟೂರು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಕೇಸರೀಕರಣ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ NSUI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಂತ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು RSS ಧರಿಸಿರುವ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಡ್ಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಚಡ್ಡಿ ಸುಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ RSS ನವರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ NSUI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಏನು ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ನೆಪದೊಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಬೀದರ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ 15 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು NSUI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜನರು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಆದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಗ್ಗಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೂಗು NSUI ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೂಗು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ NSUI ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶಣ್ಣನವರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ರು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ
ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ज्ञान अभिवृद्धियागी ಒಳ್ಳೆ भालकी में आज नए तालुका अदालत की नई इमारत का उद्घाटन बेंगलुरु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय गौड़ा ने किया। इस कार्यक्रम में न्यायाधीश एन.के. पाटिल, बसवराज एस.सी., भालकी के विधायक ईश्वर खंडरे सहित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वकील उपस्थित रहे। भालकी से सैम्यूल का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विवादास्पद पाठ्य पुस्तक संशोधन समिति को भंग कर दिया और कहा कि अगर लोगों को पैनल द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों पर आपत्ति है तो सरकार पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को फिर से संशोधित करने के लिए तैयार है। बोम्मई का फैसला राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री वी.सी. नागेश द्वारा समिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आया है। बोम्मई ने कहा कि समिति को भंग कर दिया गया क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। हिंदू संगठनों द्वारा बुलाए गए मूल मंदिर चलो अभियान से पहले पुलिस शनिवार को श्रीरंगपटना शहर में हाई अलर्ट पर थी। जामिया मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगने के लिए शहर की कुवेंपु सर्कल से जामिया मस्जिद तक मार्च शुरू होगा। पुलिस ने किसी भी विसंगति से बचने के लिए मस्जिद की ओर जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। करीब 250 पुलिसकर्मी, 1 एसएसपी, 3 डीएसपी, 11 सर्किल इंस्पेक्टर और 30 पीएसआई तैनात किए गए हैं। इससे पहले आज उपायुक्त सी अश्वती ने घटनास्थल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। कानपुर हिंसा मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे जफर हयात हाशमी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जफर हयात हाशमी को कानपुर पुलिस ने शुक्रवार रात अरेस्ट किया है। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जफर हयात हाशमी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों को कानपुर में बाजार बंद करने और जेल भरो आंदोलन की अपील की थी। बता दें कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में अचानक हिंसा भड़क गई। इस मामले में अब पुलिस ने जफर हयात हाशमी को मुख्य आरोपी करार दिया है। प्राथमिकी में जफर हयात हाशमी का नाम सबसे पहले रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में हिंसा और पथराव की घटना के एक दिन बाद शनिवार को 500 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। हिंसा की घटनाओं में 40 लोग घायल हो गए थे। सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पंजाबी गायक की 29 मई को मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। अमित शाह ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। अमित शाह से मिलकर सिद्धू मूसेवाला के पिता खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। मूसेवाला के पिता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज चंडीगढ़ के टेक्निकल एयरपोर्ट पर मुलाकात की। यहाँ उन्होंने अमित शाह से बेटे की मौत की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाने की मांग की। अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, विहिप के गठन से पहले अयोध्या संघ के एजेंडे में भी नहीं थी। ज्ञानवापी पर भागवत के भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद के लिए आंदोलन को याद करे जो ऐतिहासिक कारणों से आवश्यक था। उस समय आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं किया।
और इसमें भाग लिया। फैसले से पहले मस्जिद को तोड़ना, क्या इसका मतलब यह है कि वे ज्ञानवापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? ओवैसी ने भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से देश में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के आश्वासन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इन मुद्दों पर आश्वासन देने के लिए मोहन या नड्डा कौन है? उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मुद्दे पर और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बारे में स्पष्ट संदेश देना चाहिए। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, अगर वह इसके साथ खड़े होते हैं तो इस हिंदुत्व को रोकना होगा। आपने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर पीपीआई किट सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि आज मैं बीजेपी के एक बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य सामने रख रहा हूं। ये एक राज्य के सीएम हैं, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता। इस नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी और बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक रिपोर्ट्स में दस्तावेज सामने आए हैं कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जब 2020 में वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब कोविड की आड़ में भ्रष्टाचार किया। उनकी पत्नी की कंपनी है जेसीबी इंडस्ट्रीज, उसको पीपीआई किट सप्लाई के ठेके दे दिए, जबकि उस कंपनी का मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना नहीं था। तब सरकार अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपीई किट खरीदती थी, लेकिन उनकी पत्नी को 990 रुपए प्रति किट की खरीदी का ठेका दिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर फटने से आग लग गई, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने इनके बारे में पुष्टि की है। वहीं 20 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मामला थाना धलाना क्षेत्र के यूपीएस आईडीसी का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर 2 दर्जन लोग फंसे हो सकते हैं, जिनको सुरक्षित निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2021 की रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया है। साथ ही इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2021 की ये रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी की थी। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हाल के दिनों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता और पूजा स्थल को लेकर लोगों पर हुए हमले बढ़े हैं। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वहां हाल के दिनों में लोगों पर और उपासना स्थलों पर हमले के मामले बढ़े हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जवाब दिया कि यह रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों की बेबुनियादी जानकारी पर आधारित है। हम अपील करेंगे कि पहले से बनाई गई जानकारियों और पक्षपातपूर्ण नजरिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जज्बे को बखूबी दिखाती है अधिविशेष की फिल्म मेजर। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल की शुरुआत में ही चोटिल होने के बाद हताश हो गए थे मिचेल मार्श। अंत में समाचार बाजार की। भूल जाइए सस्ता सिलेंडर, सरकार अब सिर्फ 9 करोड़ लोगों को ही देगी एलपीजी सब्सिडी का फायदा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कन्नड़ संस्कृति और ऊर्जा विभाग मंत्री सुनील कुमार आज बीदर दौरे पर। बीदर चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की पुनर्निर्मित इमारत उद्घाटित। एनएसयूआई की राज्य अध्यक्ष कीर्ति गणेश को रिहा करने की मांग। कर्नाटक पाठ्यपुस्तक संशोधन समिति भंग, ग्रंथों को फिर से संशोधित करने के लिए खुला सीएम बोम्मई। श्रीरंगपटना पुलिस ने मार्च से पहले मस्जिद रोड को जाम कर दिया। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले अमित शाह, गृह मंत्री से मिलकर रो पड़े पिता। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।